West Bengal Governor C.V. Ananda Bose on Thursday termed the vandalism at Arjikor Medical College and Hospital a shame to civil society. Let's listen in to what exactly was said by the governor yesterday. What I was told, what is reported about the ghastly incidents which took place here in the last few days is shocking, shattering, benumbing, deplorable. It's a shame for Bengal, shame for India, shame for humanity. If we cannot protect our mothers, our sisters, our daughters, that doesn't speak well for a society. This is the greatest degeneration that we saw all around us in the maintenance of law and order. Human life is tossed around for politicization. The custodians of law, who are supposed to protect the life and property of the citizens, they themselves have become conspirators in the game. A section of the police is politicized, a section of the police is criminalized, and this is affecting the well-being of the educational institutions. This rot has to end. It's a responsibility of any civilized society to see that its women are protected. We all boast, yatra naryastu pujyanti, ramantai tatra devata, where women are honored, where the gods rejoice. But is it what is happening in contemporary Bengal? There is the fear psychosis rampant in society. There is intimidation, there is violence, unchecked violence. This has to go. It is a reflection of this rot that has resulted in the cold hands of death snatching away the living, vibrant and dynamic personality of a young lady doctor. The society has to answer for this. Government is responsible for this. The first responsibility lies with the government. All other stakeholders also have to come here. The law has to come in force. What the youngsters are asking is very just. They say we want justice. They want security. When you go for work, particularly at night, there should be a security that you will be able to return alive. That security is not here in Bengal. Now, while the blame game continues, the case remains complicated with several unanswered questions which the CBI investigation is expected to resolve. With that, let's quickly cut across to our colleague Supriyo Guha, who's joining us on the broadcast to bring us more details. Supriyo, very good morning to you. पहले तो आप हमें ये बताएं कि CBI की जो जांच चल रही है वो किस मकाम तक पहुंची है अभी, उससे क्या जानकारी मिल रही है? हमें पता है कि CBI को ऑर्डर दिया गया है कुछ भी डिटेल्स ना रिवील करने के लिए अभी, क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव है, पर अभी तक जानकारी क्या मिल रही है कि जांच पहुंची कहां तक है? गुड मॉर्निंग। मैं पहले आपको जो बताना चाहूंगी कि ये जो अर्जीगर कांड को सामने रखते हुए अस्पताल के जो जूनियर डॉक्टर है, पीजीटी इंटर्न लोगों का जो कुछ दिन पहले से जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो प्रोटेस्ट और भी जोरदार हो रहा है, क्योंकि गुरुवार रात को अचानक अस्पताल में बहुत सारे बाहर से आए हुए लोग तोड़फोड़ चलाया, हमला किया। उसमें बहुत सारे महिला भी थे। उन लोगों को किस लिए ये हमला चलाया गया, पहले ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, और इस हादसे को सामने रखते हुए ये जो जूनियर डॉक्टर लोग हैं उन लोगों को बहुत सारे सवाल है ये हादसे के पीछे क्या है। और कोलकाता पुलिस ऑलरेडी इस हादसे को सामने रखते हुए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है, और अभी तक हम लोगों को जो जानकारी मिल रहा है कि 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से कई सारे लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ भी चल रहा है। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप जो पूछ रही थी, देखिए कोलकाता हाईकोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर दिया गया उसके बाद गुरुवार से
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से स्टार्ट किया है। और कल हमने जो देखा है कि सीबीआई के दो टीम, एक टीम ये जो यंग लेडी डॉक्टर है जिसकी बुरी तरीके से रेप और मर्डर की घटना घटी, उनकी फैमिली से बात किया, उन लोगों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और दूसरी तरफ जो कुछ डॉक्टर लोग हैं जिन लोगों को बुलाया गया था फिजियो कॉम्प्लेक्स के जो सीबीआई ऑफिस है वहीं पे बुलाया गया था, उन लोगों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। और इस सब कुछ करने के करके सीबीआई जो जानना चाहते हैं कि ये जो घटना घटी इसके पीछे अकेले ये सिविक वॉलंटियर संजय है और किसी का इन्वॉल्वमेंट है, यही जानना चाहते हैं सीबीआई। और सीबीआई की जांच चल रहा है। सीबीआई हम लोगों ने देखा कि कल भी दूसरी बार ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो अस्पताल में आए, यहाँ पर आके इन लोगों ने अस्पताल के बहुत सारे लोगों के साथ बात किया। और गुरुवार रात को जो हमले की घटना घटी इमरजेंसी बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग की 4th फ्लोर में बिल्कुल हमें समझ आ रही है कि अभी वहां पे क्या हालत है। आप एक और आपसे छोटा सवाल है, आप इसका भी जवाब दे दे कि जो पेशेंट्स इन हॉस्पिटल में अभी आ रहे हैं, ये जो प्रोटेस्ट कंटिन्यू हो रहे हैं, इसके चलते उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि ओपीडी अभी काम नहीं कर रहा है, सर्जरीज डॉक्टर्स कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो लोग सब धरने पे बैठे हुए हैं। हमें पेशेंट्स के बारे में भी अगर थोड़ा बता पाए तो। देखिए, जो पेशेंट लोग आ रहे हैं और जो पेशेंट एडमिट भी है ये अस्पताल में, उन लोगों को छुड़ा के उन लोगों का जो फैमिली मेंबर है वो लोग दूसरी अस्पताल में लेके जा रहा है। और ओपीडी पूरी तरीके से बंद है। इमरजेंसी जिस तरीके से तोड़फोड़ किया गया, हमला चलाया गया, उसके बाद ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का जो इमरजेंसी सर्विस है वो पूरी तरीके से बंद है। क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में ये आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जो इमरजेंसी है वहीं पे कोई सर्विस देने की कोई सिचुएशन भी नहीं है। और दूसरी जो अस्पताल है कोलकाता का और भी जो सरकारी अस्पताल है, उसी जगह पे भी जूनियर डॉक्टर, पीजीटी, इंटर्न जो लोग हैं उन लोग भी इस को सामने रखते हुए प्रोटेस्ट कर रहा है। और गुरुवार रात को जो हमला हुआ आरजीकर अस्पताल में, तोड़फोड़ हुआ, उस घटना को सामने रखते हुए ये जूनियर डॉक्टर लोगों का जो प्रोटेस्ट हो और भी जोरदार हो रहा है। और आरजीकर अस्पताल का जो ट्रीटमेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो पेशेंट लोग जो है उन लोगों को बहुत ही तकलीफ हो रहा है। बहुत लोग यहाँ से उनके पेशेंट को लेके उनके फैमिली लोग दूसरी अस्पताल में जा रहा है। जी शुक्र जी, थैंक यू हमें ये सारी जानकारी देने के लिए। वेल, दैट इज द कंडीशन इन द हार्ट ऑफ द सिटी राइट नाउ. Government hospitals denying to provide services given the circumstances, given the mob that in fact sabotaged the Reclaim the Night movement on Thursday night.